talk to you on a subject called dealing with your spiritual enemies. आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि आपके आत्मिक शत्रुओं से निपटें. If there was a key to your peace, if there was a key to your growth, then this is that key. Notice the first thing I said, spiritual enemies. और गौर करें, यहां पर पहली चीज हमने बताया आत्मिक शत्रु. The second thing I said और दूसरी चीज कहा, was, this is the key ये एक चाबी है to your peace आपकी शांति के लिए and your growth. और आपकी वृद्धि के लिए. Let's turn our Bibles to the book of 1 Kings chapter 2 and verse 12. और चलिए निकालते हैं पहले राजाओं की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 12वां वचन. You see, when Solomon sat on the throne of Israel after his father David, और आप देखते हैं जब सुलेमान अपने पिता दाऊद के बाद इस्राएल के सिंहासन पर विराजमान हुआ, he wasted no time in securing his kingdom. अपने राज्य को सुरक्षित करने में उसने कोई समय बर्बाद नहीं किया. He understood one key that he had to deal with his enemies. और उसने समझ गया एक चाबी को जो कि है उसके शत्रुओं से निपटने के बारे में. Not out of a desire for vengeance, और but देखिए to establish the peace and stability needed for his kingdom. और देखिए बदला लेने की इच्छा से नहीं, लेकिन अपने राज्य में शांति को और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए. There are 4 enemies ऐसे he चार dealt शत्रु with. हैं, जिससे निपटा उसने. Are you listening right now? 4 enemies. 4 शत्रु. The first one was Adonijah. Yes. So listen. सुनिए, So 4 enemies he dealt with. और 4 शत्रुओं से उसने निपटा. The first one पहला है was Adonijah. अदोनिया. Adonijah was his stepbrother और अदोनिया जो था वो उसका सौतेला भाई था, who wanted to usurp him and take his kingdom. और जो उसे हटाकर उसका राज्य हथिया लेना चाहता था. Long story short, he dealt with this Adonijah और अदोनिया से उसने निपट लिया. because Adonijah signifies the spirit of rebellion and ambition against you being established. और देखिए अदोनिया जो है ये जो है बलवा करने वाली और जो आपके खिलाफ में काम करने वाली आकांक्षाओं की आत्मा है जिससे आपको निपटना है. If you're a businessman, अगर आप कोई व्यवसायिक हैं you need to deal with that rebellion in your organization. और देखिए आपके ऑर्गेनाइजेशन यानी आपके संगठन में बलवेपन की आत्मा से निपटना है आपको. चलता है तू चलेगा फिर. Solomon dealt with this rebellion. और सुलेमान ने इस बलवेपन से निपट लिया. How many of you following me right now? कितने समझ हैं इस बात? Hello. सुनिए, The second दूसरा was Joab. था योआब. Now who was Joab? अब ये योआब कौन था? Joab was a very important man. He was a commander during his father's time of the military. और योआब एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था. उसके पिता के शासनकाल के दौरान सेना में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था. वो He would kill anybody. किसी को भी मार डालता था And he would do with no rhyme or reason. और बिना किसी कारण से भी. Solomon dealt with this man. और सुलेमान ने उस व्यक्ति से निपटा. This thing represents the spirit of violence and unrighteousness. और ये आत्मा जो है हिंसा और अधर्म की आत्मा का प्रतीक है. The third thing, तीसरी चीज, the third was Abiathar. और तीसरा जो है अबियातार. Who was Abiathar? ये अबियातार कौन था? He was a priest who served during David's reign. और ये एक याजक था जो दाऊद के शासन काल में सेवा किया. But this man was very loose. लेकिन ये व्यक्ति बहुत ढीला ढाला था. It speaks about compromise. और ये बताती है समझौता करने के बारे में. चलता है यार. चलता है. Look at somebody say, चलता है ना? किसी को देखकर कहे चलता है ना. Spirit of compromise. समझौता करने की आत्मा. It dealt with this during, it also speaks about unfaithfulness. और साथ ही साथ देखिए अविश्वासयोग्यता के बारे में भी ये बताता है. And the fourth enemy और चौथा he dealt was उसने निपटा Shimei. शिमय. कौन Shimei? Shimei, okay. That was a Konkan joke, you know. Shimei. शिमी. Now please, after the meeting, don't keep saying Shimei, okay? You see, the Shimei आप देखते हैं शिमी को was the spirit of slander. और ये बदनाम करने वाली आत्मा. When David was going through a tough time, और जब दाऊद एक मुश्किल दौर से जा रहा था, this man Shimei was cursing David. और ये व्यक्ति जो शिमी जो था दाऊद पर कोसता रहा, शाप बोलता रहा. Cursing David, slandering David. और दाऊद को बदनाम करता रहा, कोसता रहा. David didn't say anything. और दाऊद ने कुछ नहीं कहा. But Solomon, लेकिन सुलेमान he dealt with Shimei. उसे शिमी से अच्छे से निपटा. 4 enemies. 4 शत्रु. Okay, that's over. खैर यहां पर बात खत्म होती है. So he dealt with his enemies. तो इन शत्रुओं से उसे निपटा. And with that, now we go to 1 Kings chapter 2 and verse 12. That is the last verse in the whole chapter.
और फिर उसके बाद हम जाते हैं राजाओं की पुस्तक दूसरा अध्याय उसका 12वां वचन। Are you listening, church? आप सुन रहे हैं इस वक्त? So fast now, okay? Then Solomon, everyone said then. तब सुलेमान, Tab uske baad. Then Solomon sat on the throne of his father. तब सुलेमान अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ। A father starts from the ground. और देखिए एक पिता जो है वो जमीन से शुरू करता है, A son starts from his father's shoulders. लेकिन बेटा जो है पिता के कंधों से शुरू करता है। नहीं समझा सर आप, इसलिए आपकी ताली बहुत फीकी थी। वो समझने के लिए पहले का ट्यूबलाइट में स्टार्टर होता था, चक 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 ऐसा, ए घुमा घुमा घुमा, थोड़ा टाइम लगता। जो आपको तकलीफ करनी पड़ी वो आपके बेटे को नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा जियो भाई। Sat on the throne, not his throne, his father's throne. अपने गद्दी पर नहीं लेकिन अपने पिता की गद्दी पर। His throne of his father David, and his kingdom was firmly established. वो अपने पिता दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ और उसका राज्य बहुत ही दृढ़ हो गया। Not just established. Listen, sir. Madam, listen. You have to listen to this. आपने सुनने की जरूरत है। The Holy Spirit spoke to me. पवित्र आत्मा ने इसे कहा। The kingdom was firmly established. Not just established, firmly established. Come on. उसका राज्य बहुत ही ज्यादा दृढ़ हो गया। बस महज दृढ़ नहीं हुआ, बहुत ही ज्यादा दृढ़ हो गया। There are some people ऐसे कुछ लोग हैं that are established, जो सिर्फ साबित but हुए not firmly established. लेकिन पूरी तरह से दृढ़ नहीं हुए हैं। And there are some people और दूसरे लोग मिलेंगे that are not established. वो तो साबित हुए नहीं। That is why their son has to start from the ground. और इसी वजह से उसके बेटे की शुरुआत करनी पड़ती है जमीन से। बाप ने भी चक्कर काटे, बेटा भी चक्कर काट रहे, और एंड में चकरा रहा है बेचारा। What can you do क्या आप कर सकते हैं so that the people that are coming after you ताकि वो लोग जो आपके बाद आने वाले हैं will be firmly established? वे बहुत ही दृढ़ हो जाएंगे। Pastor, what can I do पास्टर जी मैं क्या कर सकता to हूँ be firmly established in my life, मेरी जिंदगी में बहुतायत से दृढ़ होने के लिए, in my business, मेरे व्यवसाय, in my ministry? मेरे सेवकाई में? How I pray that God would give you listening ears. प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप लोगों को सुनने वाले कान दे। Is anybody listening over क्या here? कोई सुन रहे हैं यहाँ पे? Sir, madam, you need to open your ears. और श्रीमान श्रीमती आपको अपने कानों खोलने की Stop जरूरत है। playing with that WhatsApp and now listen. उस व्हाट्सएप पर खेलना बंद करें और सुने। You see, some people, they've got a good job. और जो कुछ लोग अच्छी नौकरी मिल जाती है। What's your salary? My salary is 75K. Oh, good, very good. Very good. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 100 देना, 1000 देना, परसों देता। पीटर से 1000, दूसरे दिन पॉल से, चौथे दिन जॉन से। अरे तेरी सैलरी इतनी बड़ी है तो तू इससे उससे क्यों मांग रहा है? You are not. You're not established. आप स्थापित नहीं हुए। You do one business अब एक व्यवसाय करते हैं because somebody else is doing it. क्योंकि कोई और भी कर रहा है। उसने गाड़ी डाला, चल हम लोग भी गाड़ी डालते हैं। तेरी गाड़ी बैलगाड़ी बन गई। अभी दूसरा कुछ करते हैं। वो व्हाइट शर्ट वाला सामने बैठा है, उसने रियल एस्टेट का, हम लोग भी करते कुछ, वो नहीं चला। तीसरा, आफ्टर 15 years, 15 साल के बाद कुछ नहीं चला। You are not. You're not established. You're not established. Forget about the firmly established. और You are not established. दृढ़ होने के बाद छोड़ दीजिए। आप Today, नहीं हो if पाए। you have the wisdom of God in you, अगर आज परमेश्वर की बुद्धि आप में हो then I decree and declare in Jesus' name. तो ऐलान करते हैं यीशु के नाम में। You got 4 months before this year closes. और ये साल खत्म होने से 4 महीने बचे। You will be established before this year closes. ये साल खत्म होने से पहले आप स्थापित कर दिए जाएंगे। September, October, November, December. I want to hear your testimony on 31st. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, I am दिसंबर। firmly established in the name of Jesus. गवाही सुनना चाहते हैं, बहुत ही दृढ़ हो गया यीशु के Lift नाम your में। hand and say, I shall be firmly established in the name of Jesus. अपने हाथ उठाकर बोलिए, मैं बहुत ऐसे दृढ़ होऊंगा यीशु के नाम में। Today we're going to look at that. आज हम देखने जा रहे हैं ये।
Is it stirring you up this morning? क्या ये आपको उत्तेजित कर रही है सुबह? Why was Solomon's kingdom throne firmly established? और क्यों सुलेमान का राज्य एकदम बहुत ही दृढ़ हो गया? Write it down. The one key was Solomon's wisdom dealt with his enemies. और एक चाबी जो है सुलेमान की बुद्धि, उसने अपने शत्रुओं से निपट लिया। Now in the Old Testament, और देखिए पुराने नियम में Solomon had to deal with physical enemies. और सुलेमान को भौतिक शत्रुओं, शारीरिक शत्रुओं से निपटना पड़ता था। Come on, hello. चलिए सुने। In the Old Testament, it was all physical battle. और देखिए पुराने नियम में शारीरिक लड़ाई होती थी। But you know, even in the Old Testament, there were some spiritual people like David. He looked at Goliath and said, "You come to me with the spear and the javelin, but I come to you in the name of the Lord." पुराने नियम Hallelujah. में देखिए शारीरिक लड़ाई के स्तर में भी देखते हैं, वहां पर दाऊद नाम का एक व्यक्ति था जिसे गोलियत को देखकर कहा, तू तलवार और भाला लेकर मेरे मुझसे लड़ने के लिए आया, मैं अपने प्रभु के नाम से आया हूं। ले प्रभु के नाम से तेरे लिए पत्थर भी काफी है, ये ले टुंग। Yeah. The battle in the New Testament is not physical, it is spiritual. We war with spiritual weapons. और देखिए नए नियम में लड़ाई जो है वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। आत्मिक हथियारों के द्वारा हम लड़ाई लड़ते हैं। The name of Jesus, यीशु का नाम, the blood of Jesus, यीशु का लहू, the word of God. परमेश्वर का वचन। Is anybody listening, sir? क्या कोई सुन रहे हैं इस वक्त? So the Old Testament, Solomon dealt with his enemies. So today we need to deal with spiritual enemies. तो पुराने नियम में सुलेमान ने इन शत्रुओं से निपटा, आज हमें इन शत्रुओं से निपटने की जरूरत है। There's enemies that threaten our peace and growth and our relationship with God. और ये शत्रु जो है हमारी शांति को, हमारी वृद्धि और परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है उसे धमकाती हैं। Many believers, बहुत सारे विश्वासी, many Christians, बहुत सारे मसीही they struggle वे संघर्ष करते to हैं establish peace, शांति को स्थापित करने में, to establish spiritual growth, आत्मिक वृद्धि को स्थापित करने में, because they have not actively dealt with the spiritual enemies in their life. क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कार्यशील तौर पे इन शत्रुओं से निपटा नहीं है। Write this down. लिख लीजिए, Homework. होमवर्क लिख लीजिए। How many of you have done your MBA? Good. So the boss, so your professor will give you some study material to read. Come on, yes or no? तो प्रोफेसर कुछ ऐसे सामग्री के बारे में बताते हैं जिनको आपको पढ़ना है। बाबा तुम लोग पढ़ते क्या नहीं भाई लोग? ऐसे को बोले आजकल कौन पढ़ता है? कॉपी मारते हैं ऐसा? No, ये पढ़ना है आपको. So there was a man of God called A.A. Allen. परमेश्वर जन हुआ करते थे ए एलन जी। How many of you know? किधर जानते हो नहीं? Oh, you know. I just want to see. This man ये जन was mightily used in the healing ministry, in the miracle ministry. परमेश्वर के द्वारा चंगाई और आशीर्वाद की सेवकाई में बड़े जोरदार तरीके से इस्तेमाल किए गए। This great man of God. परमेश्वर महान जन, One day he prayed. 18 wheelchairs is documented on film. 18 wheelchairs got up. और एक दिन उन्होंने प्रार्थना किया तो 18 लोग जो व्हीलचेयर पर आए थे उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन check him on सब कैसे YouTube. उठ गए। You can check him on YouTube. His videos are still there. और YouTube पे Great आप men in Bangalore and other places. I don't want to name them. They watched him. और परमेश्वर जो I've महान been जन close बैंगलोर up में with many उसी men जगह of God. It's amazing. बड़े Now, अद्भुत। when he was a pastor, देखिए जब वे एक पासबान थे, he asked the Lord a simple question. उन्होंने प्रभु से एक सरल सा सवाल पूछा। I quote from his book, The Price of God's Miracle Working Power. I परमेश्वर thought के you'd write it आशीर्वाद down. सामर्थ के लिए जो दाम, उसके बारे में पुस्तक जो है उसमें से बताते हैं। In that book he writes, उस पुस्तक में लिखते हैं, what are the things, Lord, that stand between you and me और वे and कौन the सी miracle working power of God? और वे कौन सी चीजें हैं प्रभु जो आपके और मेरे और आपके आशीर्वाद में सामर्थ के बीच में खड़ी हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे और तेरे बीच में खड़ी हैं जिससे पवित्र आत्मा का काम रुका पड़ा है? He asked God, उन्होंने परमेश्वर से पूछा and he was fasting and praying, और वे उपवास और प्रार्थना में लगे हुए थे and God showed him और परमेश्वर ने उनको दिखाया 13 things. 13 चीजें। 13 things. 13 चीजें। I'm going to send you the link of the book and you can purchase it. उस पुस्तक की लिंक आपको भेज देंगे, आप खरीद सकते हैं। Hello. You have to read it, okay? Don't be like some tadpole in some well, you know. यही मेरी दुनिया है. कुएं के भारा और बड़ी दुनिया है. So you have to read. तो आपको पढ़ने की जरूरत है। So those 13 things. तो वे 13 चीजें, He started praying. वे प्रार्थना करने He लगे, started praying. प्रार्थना करने लगे, Because those were these enemies, his spiritual enemies. क्योंकि वे सब चीजें जो है उनके शत्रु थे, आत्मिक शत्रु 1, 2, थे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Prophetic counting. Listen. भविष्यवक्ता सुनिए। And
as those things he started dealing with it, और जैसे एक एक करके उन चीजों से निपटने लगे, he would, one day he just stood before the crowd और एक दिन भीड़ के सामने खड़े हुए and the glory fell. और महिमा उतर आई. Listen, सुनिए, and a call went to the fire brigade. और फायर ब्रिगेड को कॉल लगाया गया, There's a fire in the tent in that ground. और उस मैदान में वहां के तंबू में आग लग गई है. We can see the fire. आग हम देख पा रहे हैं, All the fire brigades came. और सभी दमकल कर्मी यानी फायर ब्रिगेड आ गए, Ding, 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 ding. साइरन बजा रहे हैं करके And आगे the chief वहां, fire brigade fellow says, where is the fire? और आकर देखना आग कहाँ लगी है, He was an unbeliever. और वो एक अविश्वासी थे. He said, there is no fire. कोई आग The दिख नहीं रही, Christians on the road are saying, see the fire. और मसीह लोग सड़क पे से कह रहे देखो आग. That was the fire of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की आग थी. That fellow became a Christian. और वो व्यक्ति भी मसीह बन गया. The glory of God. परमेश्वर की महिमा. How many of you listening right ये now? तो सुन रहे हैं इस वक्त, These are documented. और ये सब लिखा हुआ है. So you see, church, when you deal with these spiritual enemies in your life, तो कली से आप देखते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में इन शत्रुओं से निपटते the हैं, river of God, the glory of God will begin to flow into every area of your life. परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की नदी आपकी जिंदगी के हर एक क्षेत्र में बहने लगेगी. Look at somebody and say, I know you are serious with the Lord. और किसी को देखकर कहे मैं जानता हूं कि आप प्रभु के साथ गंभीर लग रहे हैं. Signs and wonders would happen in his life. चिन्ह और अद्भुत काम उनके जीवन में होने लग गए. How many of you are following me, church? ये तो समझ रहे हैं. The second point, write it down. दूसरा मुद्दा लिख लीजिए. He's just blessing you. क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Praise God. I'm glad you're hungry for the Lord. Identifying the real enemy. Write it down, please. अपने Come on, असलियत write के it down. शत्रु को पहचान लो. Write it down. You know, when you develop this habit to write it down and use a iPad, use something to, because you can I teach you? आप सिखा सकते हैं? Can I mentor you? Don't use a physical book. I'll tell you the reason. I love physical books. I have so many books. I gave it away. Categorize it on an iPad or something so you can use it later on. Otherwise, the book is sold, your notes are gone. नहीं तो किताब अगर आप पुस्तक बिक जाएंगे तो आपके सब लिखे हुए चीज चली No जाएगी. offense, those having, कोई ठेस नहीं है. no offense. I know you love to write. You know? और पता है कि आप लिखना बहुत पसंद करते हैं. It's good. अच्छा है. But your book goes, your notes are gone. लेकिन अगर आपकी पुस्तकें चली जाती तो आपके सारे नोट्स भी चले जाते. One day, one lady, she was in Margao, she wrote all my notes. She left a book, a conductor came with the book to my meeting. Really, I'm telling you, such बोल रहा हूं. So when you categorize the notes, तुम उसमें add कर सकते हो, कुछ डाल सकते हो, और वो message फिर तुम्हारा हो जाता है. So when you deal with your spiritual enemies, तो जब आप अपने आत्मिक शत्रुओं से निपटते हैं, the power of God will begin to flow. परमेश्वर की समझ बहने लगेगी. So the second point, तो दूसरा मुद्दा, identifying the real enemy. अपने असली शत्रु को पहचान लीजिए. I told you earlier पहले आपको बताएं that your father-in-law, your mother-in-law are not your enemy. कि आपके सास, आपके ससुर ये आपके दुश्मन नहीं है. Look at somebody किसी को देखें, and say, your brother and sister is not your enemy. किसी को देखकर कहें कि आपके भाई बहन आपके दुश्मन नहीं है. बोलना है, मेरे को अच्छा लगेगा. The people in the church are also not your enemies. कलीसिया में के लोग भी आपके दुश्मन नहीं हैं. नहीं, मैं इधर बैठा ना क्योंकि वो उधर है. Then who are your enemies? तो आपके दुश्मन कौन है? You know, Paul the apostle, give me the amplified please, what I've given you. देखिए, प्रेरित पौलुस कहते हैं, Go to Ephesians 6 now. And we look at the amplified. Now please look at the screen. For we are not wrestling with flesh and blood, pastor. देखिए हम लहू और मांस से नहीं लड़ते हैं, Contending only with physical opponents. और सिर्फ अपने शारीरिक दुश्मनों को समझते हुए, But against the despotism. Everyone said despotism. I'll explain it. Against the powers. हर एक ऐसी शक्ति के खिलाफ में, Against the master spirit. Oh. और शासन करने जो आत्माएं हैं, Against the what? Against the what? Master spirits. Master spirits. जो तेरे ग्रैंडफादर को अटैक किया ना, भाई तेरे पीछे लगा है वो. नहीं सब? Can I explain, sir? Many people don't understand this. बहुत सारे समझते नहीं What से. they think is, वे सोचते हैं just because they are in the New Testament, क्योंकि वे बस नए नियम में हैं, you are born again, that means it does not apply. आपने नया जन्म पा लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए लागू नहीं होगा. They are wrong. वे गलत हैं, Because क्योंकि the New Testament नया नियम begins with genealogy. और देखिए वंशावली से शुरू होता है. Son of, you know, earlier when I पढ़े ना, बोले क्या पागल की, पहला चैप्टर खोला ये लफड़ा. उस टाइम तो मैं केजेवी पढ़ता था. बिगैट, कितने लोगों ने पढ़ा बिगैट? तो हम लोग तो समझते नहीं बिगैट. भाई ये बिगैट कौन है? John begat this.
Zechariah begat this. Look at somebody, say, इसका बेटा, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप. How many of you skipped that page? कितने लोगों ने उस पन्ना को छोड़ दिया, आगे बढ़ गए? Now the New Testament, look. अब देखिए यहाँ पे नया नियम. Now the New Testament begins with a genealogy. और नए नियम की शुरुआत होती है वंशावली से. Tell your neighbor again. फिर से कहें अपने पड़ोसी से. वो बेटा, उसका बाप, उसका बाप. बाजू वाले को बोल, whose son are you? अपने पड़ोसी को पूछे, आप किसके बेटे हैं? Whose son are you? Look at me. Saul, King Saul. राजा शाऊल. He was very insecure. बहुत ही वो असुरक्षित था. Though he was a king, very insecure. और हालांकि वो राजा था, फिर भी बहुत असुरक्षित So the था. Gibeonites come and make a peace treaty with the Saul and the people. और गिबानी लोग आते हैं और वहां पर शाऊल और उसके लोगों के साथ शांति की जो वाचा बांधते हैं. Said, okay, वो कहते हैं ठीक है, we'll not kill you. हम तुम्हें नहीं मारेंगे. And later on, और बाद में Saul kills the Gibeonites. और शाऊल जाके गिबोनियों को मार देता है. Because the treaty is broken, what he did with Joshua. और क्योंकि जो संधि वार्ता उन्होंने बांधा था, देखिए उसे तोड़ दिया गया. Then later on, फिर बाद में David, दाऊद when he becomes the king, जब राजा बनता है, 3 years, 3 साल there is famine. अकाल पड़ा था. First year, पहला साल famine. अकाल. Second year, दूसरा साल famine. अकाल. Third year, तीसरा साल famine. अकाल. What is your famine? Wait. आपका अकाल क्या है? 3, fasting and praying. David fasting and praying. और तीसरा देखिए, दाऊद उपवास प्रार्थना में लगा. God answers him. परमेश्वर उसे उत्तर देता है. He said, son, कहता बेटे, he said, उसने कहा, Joshua का जो covenant गिबियोनी के साथ किया था, वो सॉल ने तोड़ दिया और वो गिबियोनी लोगों को मारा. अभी जा गिबियोनी के लोगों से पूछ कि अभी मुझे क्या करना है. कितने लोगों ने पढ़ा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया. I will tell you. Please, I'm going a little deep today. थोड़ा गहराई में जा रहे हैं आज. Those are in the KG class, please bear with me. जो केजी की कक्षा के लोग हैं, मेहरबानी करके बने रहिएगा. And then the Gibeonite says, और फिर गिबोनी लोग कहते हैं, give us 7 people हमें 7 लोग दे of Saul's lineage. शाऊल की वंशावली में से. And they were killed. और वे मार दिए गए. What was their fault? और उनका दोष, उनकी गलती क्या थी? बेटा बोला मेरी गलती क्या है? अरे मेरे को किधर लेके जा रहे? बोले तेरे बाप ने उनको मारा, चल तू अभी. That is what happens in the realm of the spirit. और यही तो होता है आत्मा के आयाम में. Master spirits. Why am I going through this famine? और क्यों मैं इस अकाल में से जा रहा हूं? Why मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? Today in the name of Jesus we're going to deal with that. आज यीशु के नाम में उनसे निपटने जा रहे हैं हम. Somebody receive it in the name of Jesus. कोई तो ग्रहण करे यीशु के नाम में. मास्टर सिर्फ स्पिरिट नहीं सर, मास्टर और स्पिरिट पर राज करता है. उसके घर में नहीं, इनकी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए. मास्टर स्पिरिट. ध्यान से सुन. Listen to me. सुनिए. Further it says, the world rulers. फिर आगे देखिए, संसार पर शासन करने वाले. World rulers of the present darkness against the spirit forces of wickedness in the heavenly places. Supernatural sphere. If I talk to you about the second heaven, अगर आपसे बात करें दूसरे स्वर्ग के बारे में, you'll not sleep. आप सो नहीं पाएंगे. You'll read your Bible as a madman. I'm telling you. So these are the things that you and I are fighting. तो ये वो चीजें जिनसे आप और हम लड़ते हैं. These are the things that you need to fight against. और ये वो चीजें जिनके खिलाफ आपको लड़ना चाहिए. If you can identify the real enemy, अगर आप अपने असली शत्रु को पहचान लें, then you will overcome. तो आप जय पालेंगे. Look at somebody and say, deal with your spiritual enemies. किसी की ओर देखकर कहें, अपने आत्मिक शत्रु से Please, निपटें. किसी से कहो इस वक्त. किसी से तो बोलिए. Mark chapter 4, please. चलो निकलें, मरकुस का 4था अध्याय, 35 and 36. 35 से On the 36. same day, when evening had come, Jesus said to them, let us cross over to the other side. और उसी दिन जब शाम हुई, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, चलो हम दूसरी ओर जाते हैं. Verse 36. Let's hurry up.
Now, when they had left the multitude, they took him along with him in the boat, and the other little boats were also with him. Escort. 36वां वचन, जब वे भीड़ को छोड़कर चले गए तो वे उसे नाव पर वैसे ही ले गए जैसे वह था. Verse 37. And a great windstorm. Not everyone say, not just a storm. Yesterday I was reading that a helicopter crashed in Pune. Anybody knows? Due to very good. Fortunately, nobody died. Because of the storm, a great windstorm rose. और एक बड़ा तूफान आया And the waves beat into the boat so that it was already filling. In other words, it was ready to drown. और लहरें नाव पर इतनी जोर से टकराई कि वो पानी से भर गई, यहां तक ये देखिए डूबने पर थी. Now we know the story. और हमें कहानी पता The है. disciples wake up Jesus. और चेले लोग यीशु को जगाते हैं. Now please understand. अब मेहरबानी से The समझिए, disciples were not tourists. और जो चेले जो थे वो पर्यटक नहीं थे. Well, the first time photo take outing. Photo take outing. What are you doing? Pastor, photo take outing. Take out. Literal Hindi translation. Photo निकाल रहा हूं. निकाल दे रे बेटा. Take it out. Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, never mind. So we know what Jesus did. तो हम जानते हैं यीशु ने आगे क्या किया. He said shalom. और वो उन्होंने कहा शलोम, Storm सब is कुछ over. शांत हो गया. We all know the story. Come on. हमें पता है ना कहानी. Tell your neighbor, लगता तेरे को नहीं मालूम है. So now, तो अब all the disciples, they were not tourists. और देखिए सभी चेले लोग जो थे वो पर्यटक नहीं थे, They were seasoned fishermen. और वे तो अच्छे माहिर थे, मछुआरे Come on. थे. If they are scared, अगर वे घबरा गए, डर गए, that means, इसका मतलब tell your neighbor, sir, अपने पड़ोसी को बोली, जनाब it was really a storm. सचमुच बहुत बड़ा तूफान था ये. One day I was traveling to Bangalore. और एक दिन पासवान जी बेंगलोर जा रहे थे. You know, those days we had something called Jet Airways. And the planes, first it shook slowly. और पहले जो हवाई जहाज जो पहले तो धीमे धीमे By that time, already I was in the second heaven praying. उस समय तक दूसरे स्वर्ग में पहुंच के प्रार्थना में लग गए. The blood of Jesus, the blood of Jesus. पहला ट्रैवल, तुम लोग क्या हंस रहे हैं? पहला ट्रैवल करते हैं, प्रेयर लाइफ बढ़ता है. After some time, कुछ समय के बाद it shook more. ज्यादा और हिलने लग गया. And till then, the air hostess were going like that. और उन लोग बेचारे काम कर रहे थे. लहराते हुए Very टहल रहे. difficult job, huh? They're walking, they're smiling, still they are smiling. मैं बोला यहाँ पर हम लोग सब वाट लग रही है और ये लोग स्माइल कर रहे हैं. After some time, कुछ समय के बाद the pain started going like this. That time, उस समय oh Jesus, my eyes were closed. My eyes were closed. की आंखें बंद हुई. I remembered everybody in heaven. सब के सब स्वर्ग में, Father God of Abraham, Isaac, Jacob, God of Jesus, God Jesus. Don't laugh, huh? Praise the Lord. Don't laugh. And then the air hostess also was sitting down. और फिर एयर होस्टेस वे भी सब बैठी हुई थी. Then I realized, फिर पता चला earlier it was not dangerous. पहले इतना खतरा नहीं था. That time, उस समय I remembered this. ये वचन याद आया. I said, if the disciples were screaming, अगर चेले लोग चिल्लाने लगे, that means it was a storm. इसका मतलब बहुत बड़ा तूफान था. How many understood what I'm कितना saying? समझ गए? Tell your neighbor, now you understand. अब अपने पड़ोसी को बोलिए कि अब हम लोग को आपको सब समझ में स्टोरी वोरी बोल के बोलना पड़ता है ना रे. So this is how the situation was. आया. तो ऐसे ही वहां के हालात थे. Now story is over. अब कहानी खत्म होती है, Everything is calm. सब कुछ शांत हो जाता है, Disciples have forgotten, और चेले लोग भूल गए, but Jesus has not forgotten. लेकिन यीशु नहीं भूला. He is going to show you now who the enemy is. अब वो दिखाने जा रहे थे कि शत्रु कौन था. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को, you are going through the storm, आप तूफान में से जा रहे हैं, or you have passed through the storm, या फिर आप तूफान में से गुजर चुके but you don't know who the enemy हैं, लेकिन आप नहीं is. जानते आपका शत्रु कौन है. I'll show you in Mark chapter 5. आपको दिखाएंगे मरकुस का 5वां Go to अध्याय में. Mark chapter 5. Hurry up. चलिए देखें मरकुस Then का they 5वां. came to the other side of the sea, to the country of Gadarenes. फिर उसके बाद झील के पार गिरासीनियों के देश में पहुंचे. Verse 2, hurry up. And when they had come out of the boat, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. आगे लिखा, और जब वह नाव से बाहर निकला तो तुरंत कब्रों में से एक मनुष्य उससे मिला जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी. Verse 3. Who had his dwelling among the tombs, Qabr. जो कब्रों के बीच में रहता था. He could have easily got a role in the Ramsey films, you know. He was living in the tombs. वो
वो कब्रों में रहता He था, was naked. वो नंगा था, And no one could bind him, और कोई उसे not बांध नहीं सकता था, even with chains. यहां तक कि जंजीरों से भी नहीं। This was the man. And Jesus asked the man, और who are यीशु ने उस you? व्यक्ति से पूछा, Who are you? तुम कौन हो? He said, I'm legion. उसे कहा, मैं सेना हूं। Translation. उसका अनुवाद, 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्मा है उसके। 2000 से ज्यादा दुष्ट आत्मा उसमें थी। They knew फिर Jesus is coming. वे जान गए कि यीशु आ रहे हैं, And these were the demons that sent the storm. और यही वो दुष्ट आत्माएं थी जिन्होंने तूफान को भेजा था। Look at somebody and say, identify the enemy behind your storm. किसी को देखकर कहें, आपके तूफान के पीछे के शत्रु को पहचान लो। Look at somebody and say, deal with the enemy. किसी को देखकर कहें, शत्रु से निपटो। You will have shalom in your life. आपकी जिंदगी में शालोम होगा। Lift your hand and say, I receive in the name of Jesus. अपने हाथों का मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। Somebody raise your hand. We are going to take the first prayer point right now. If you are ready, say yes, I'm ready right now. Open your mouth, right? Lift your hand and pray. Say, every enemy of my और progress क्या? मेरे प्रगति का कोई भी शत्रु be cut off in the name of Jesus. काट डाली जाए यीशु के नाम में। Open your mouth and begin to pray. Open your mouth and begin to pray. चलिए करें। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Every enemy of my progress be cut off in the name of Jesus. You have to be serious. आपको गंभीर होने की जरूरत है। There is something that doesn't want you to progress. और ऐसी कोई चीज है जो नहीं चाहती कि आप बढ़ोतरी में आए। Lift your hand and pray. Every enemy of my progress be cut off in the name of हाथ Jesus. उठाकर कहें, मेरे तरक्की का हर एक शत्रु काट डाला जाए यीशु के नाम में। Open your mouth and pray it 7 times right now in the mighty name of Jesus. अपने मुंह खोल के 7 बार ऊंची आवाज में प्रार्थना करें यीशु के नाम। I give you 4 hours. May you see your miracles. आपको 4 घंटे देते हैं, आप अपने आशीर्वाद देखने पाए। Open your mouth, raise your hand and begin to pray. अपना मुंह खोले, अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करना And शुरू करें। prophesy, I shall make progress. भविष्यवाणी करें कि मैं तरक्की देखूंगा। My company shall make progress. मेरी कंपनी तरक्की करेगी। My job shall make मेरी progress. नौकरी तरक्की देखेगी। Today is Deliverance Sunday. छुटकारा का रविवार है। Every enemy of my progress, the progress of my family, be cut off, be uprooted in Jesus' name. और मेरी तरक्की के खिलाफ में काट डाली जाए यीशु के नाम में। Holy Spirit, move upon your people. पवित्र आत्मा मंडराते हैं लोगों पर। Holy Spirit, move upon everyone that is praying. पवित्र मंडरा हर एक पर जो प्रार्थना कर I रहे want the हैं। volunteers to pray. चाहे वॉलंटियर प्रार्थना करेंगे। Holy Spirit, flow. पवित्र आत्मा बहे। Father, let your people progress. और पिता होने दे तेरे लोग तरक्की पाए। Let your children तेरे progress. बच्चे लोग तरक्की पाए। Let their families इनका progress. परिवार तरक्की पाए। May from today onwards you go to a new level. आज के दिन से आप एक नए स्तर में जाएं। Begin to pray that 3 more times. चलिए प्रार्थना का शुरू करें और 3 बार। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Holy God, release your angels as they are praying. पवित्र परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों को भेज जिसकी वजह से प्रार्थना In कर रहे हैं। Jesus' mighty name we pray. यीशु के समझ नाम में प्रार्थना And करते God's हैं। people said, परमेश्वर के लोगों ने कहा, yeah, now you give the Lord a shout of praise. अब प्रभु को जोर ताली की भेंट चढ़ाएं। Every enemy of my progress मेरे तरक्की के खिलाफ में हर एक शत्रु काट डाला जाए। we are not dealing with physical people. और देखिए हम शारीरिक लोगों से नहीं निपट रहे। We are not dealing with your Uncle Zuang, you know. Who's he? Never mind. We are dealing with spiritual enemies. आत्मिक शत्रुओं से निपट रहे हैं। Somebody say amen. कोई कहे आमेन। Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Please don't ask who's Uncle Zuang, okay? Praise the Lord. So to fight effectively, we must deal with the real enemy. तो देखिए प्रभावशाली तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए हमें अपने असलियत के शत्रु को पहचानना है। How do we do that? कैसे हम करते हैं? Write it down. First one, पहला है spiritual discernment. आत्मिक परख। Otherwise, you'll fight with somebody else. नहीं तो आप किसी और से लड़ेंगे। बोले तू ही है वो जो मेरे को रोक रहा है, तू ही है, तू ना मिल मेरे को बाहर. Spiritual discernment. आत्मिक परख। You need to understand आपको समझने की जरूरत who है। are your friends, आपके दोस्त कौन है? who are your enemies, आपके दुश्मन कौन है? and who are your frenemies. और दोस्त के रूप में दुश्मन कौन है? Some people just woke up. Who are your friends? आपके दोस्त कौन है? Who are your enemies? आपके दुश्मन कौन है? And who are your frenemies? दोस्त दिखते तो हैं, be careful. God will show you. सावधान रहना। परमेश्वर God को will दिखाएगा। discern. परमेश्वर आपको परख करने का वरदान देगा। बोले तुम आगे बढ़ो, हम तेरे साथ है, पीछे देखो तो कोई नहीं है. अरे वो लोग तो बोले साथ देंगे, आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, पीछे देखा तो यीशु ही खड़ा है. फ्रेनेमीज दोस्त के रूप में बिजनेस डाल में सपोर्ट करेगा, जब टाइम आएगा
लोन लेना पड़ेगा, दूंगा ना, पैसे दूंगा ना, करूंगा ना. Even in the sometimes people will say, don't worry, I'm praying for you. Nobody prays for you. Develop your prayer life. कोई अपने प्रार्थना नहीं करे, अपने प्रार्थना जीवन को विकसित करना है आपको. सब लोग व्हाट्सएप वाला हाथ वो माइक जुकरबर्ग ने बराबर डाला है. Pray for me, my back is paining. बहुत कम लोग हैं जो आपके लिए प्रार्थना करेंगे. बोली मेरी माँ हॉस्पिटल में है. तुम जूता बेचना चाहिए उनको, जूते को. Praise the Lord. So you need spiritual discernment. तो आपको आत्मिक परख की जरूरत है. Look at somebody and say, spiritual discernment. किसी को देख करके आत्मिक परख. Lift your hands and say, Lord, give me spiritual discernment. अपने हाथ लगा कहे, परमेश्वर मुझे आत्मिक परख दे. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. जब मैं किसी चीज को देखूं तो मुझे परखने की आत्मा दे. कितने लोग सुन रहे हैं? Second, दूसरा. what you need to recognize your enemy, you need an understanding of the word of God. और दूसरी चीज यह है कि आपको परमेश्वर के वचन की समझदारी होनी चाहिए आपके पास. What do you need? मतलब क्या होना चाहिए? Understanding of you don't read the word, you need to understand the word of God. Otherwise you'll be like that fellow, chapter number 56, You just read, ऐसा नहीं होता. You need an understanding. Everyone say understanding. सब लोग आपके पास समझदारी होनी चाहिए. समझदारी होनी चाहिए. किसी चीज की समझदारी होनी चाहिए. So everyone say, Lord, give me understanding of the word of God. सब लोग कहे, परमेश्वर मुझे तेरे वचन की समझदारी दे. Every day you must pray for this. आपको हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए. As a pastor of the church, I want to tell you, every day pray, Lord, मुझे वचन की समझदारी दे. मैं सिर्फ पढ़ना नहीं चाहता हूं, लोगों को इंप्रेस करने के लिए. मुझे समझदारी दे प्रभु वचन की. You will grow. आप बढ़ेंगे. You will grow. आप बढ़ेंगे. ज्यादा टाइम फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं, बढ़ो वचन में. Is this blessing you? The third point, the danger of ignoring spiritual enemies. और आत्मिक शत्रुओं को नजरअंदाज करने का खतरा. There is a bird in the animal kingdom. और देखिए जानवरों के राज्य, देखिए अगर आप देखें तो चिड़िया होता है. एक बड़ा चिड़िया है, उसका नाम है ऑस्ट्रिच. और उसका नाम एक बड़ा सा चिड़िया जिसका नाम. So the ostrich, it buries the head in the sand. और शुतुरमुर्ग जो है अपना सिर जो है रेत में छुपा लेता है. How many of you know that? Thinking that the enemy is gone. सोचते हुए कि दुश्मन चला गया. That's how many ostriches lose their lives. और ऐसे ही बहुत सारे जो शुतुरमुर्ग अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं. Many Christians are like that. बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं. They ignore the spiritual things. आत्मिक चीजों को नजरअंदाज करते हैं. अरे ऐसा सब कुछ नहीं रे, कुछ नहीं गए लोग. So there is a danger of ignoring these things. और देखिए इन चीजों को नजरअंदाज करने का खतरा है. Jesus said a blind man cannot lead a blind man. और यीशु ने कहा एक अंधा व्यक्ति जो है दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता. That such blind men are many there in the families. और ऐसे अंधे बहुत सारे मिलेंगे परिवारों में. They are blind. वे अंधे हैं. They are telling them. वे उनसे कह रहे हैं अरे कुछ नहीं रे, आंख बंद करके क्रॉस कर कुछ नहीं. उनको ये नहीं पता आंखें अंधे भी है, बहरे भी है. वो ट्रक आ रही है, बोले कुछ नहीं यार. आंख बंद करेगा तो क्या रोड क्रॉस कर सकते हो क्या? In the same way, your spiritual eyes must be open to cross the paths of this life. और आत्मिक आंखें आपकी खुली होनी चाहिए ताकि इस जीवन का जो मार्ग है आप उन्हें पार कर सकें. There are spiritual realities. और ऐसे आत्मिक वास्तविकताएं हैं. Your degree is good. आपकी डिग्रियां अच्छी हैं. It will help you in the physical world. और शारीरिक जगत में आपकी मदद But करेगी. you need a spiritual degree to navigate in the spiritual world. लेकिन आपके पास आत्मिक डिग्री होनी चाहिए आत्मिक जगत में आगे बढ़ने के लिए. Come on, somebody praise the Lord. चलिए कोई तो प्रभु की स्तुति हो. How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त. So ignoring your spiritual enemies is dangerous. तो अपने आत्मिक शत्रुओं को नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक है. It can have serious consequences. और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे. Go to Numbers 33, 55. और गिनती की पुस्तक में 33वां अध्याय 55वां वचन. God warned the children of Israel. परमेश्वर ने वहां पर इजराइल लोगों को, God gave the children of Israel a gift. परमेश्वर ने देखिए वहां पर इजराइल को तोहफा दिया. He said, I'm giving you the land of Israel. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम लोगों को इजराइल देश देता हूं. The land of Canaan. कनान देश. Hello. The land of Canaan. कनान देश. Watch this. गौर करें. Watch this. But he gave them a warning. लेकिन चेतावनी भी उनको दिया. As a good father, he gave them the warning. और एक अच्छे पिता के रूप में उनको उसने चेतावनी दी. And this was the warning. ये थी He चेतावनी. says, but if you do not drive away the inhabitants of the land अगर तुम उस देश के निवासियों को अपने सामने से नहीं निकालोगे from before you, then it shall be that those very people whom you let remain shall be irritants in your eyes. तो जिन लोगों को तुम रहने दोगे वे ही तुम्हारी आंखों में चुभने लगेंगे. चुभने लगेंगे. And the thorns in your flesh.
और तुम्हारे शरीर में मांस में या कहे कांटे लगेंगे कांटे लगेंगे. And they shall harass you in the land where you dwell. और वे उस देश में जहां तुम रहते हो तुम्हें सताएंगे. How many listening right now? ये जो सुन रहे हैं, God had given a clear instruction to his children. परमेश्वर ने अपने संतानों को साफ निर्देश दिया था, You need to deal with these enemies. तुम्हें इन शत्रुओं से निपटने की जरूरत है. Otherwise, नहीं तो they will harass you. तुम्हें सताएंगे वे, They shall be like thorns in your sides. और तुम्हारे लिए वो कांटा बनेंगे. Imagine thorns on your seat. जरा कल्पना करें, अभी कुर्सी पे कोई कांटा, You will sit like this. You know, in some places I saw the rickshaw brothers, they sit like that. I still don't know why. Maybe it's थोड़ा comfortable लगता है ना. लखनऊ में तो पूछो ही मत भाई. जो बैठता है वो एक्चुअली ड्राइवर सीट में बैठता है, रिक्शा वाला ऐसा बैठता है. गांव में चलती वो रिक्शा, शहर में नहीं. The big thorns. कांटे. Hello, are you listening, guys? सुन रहे हैं इस वक्त? The church is here. सो गया क्या तुम लोग? Now listen, wait now. तुम लोग खाली irritants in your eyes. आंखों में चुभने लगेंगे. आंख में थोड़ा सा तिनका जाएगा तो आंख खुलेगा क्या? This is your spiritual eyesight will become dim. और ये आपकी आत्मिक नजर जो है धुंधली पड़ जाएगी. नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा 1 मिलीमीटर का ऐसा चलेगा, आंख में चलेगा ना? नहीं चलेगा सर. 1 मिलीमीटर की चीज भी आंख में नहीं चलती है. आंख ऐसा फड़फड़ाने लगता है जब तक वो चीज है. Irritants in your eyes. आपकी आंखों में चुभने लगेंगे. I want to tell you, sir. You know what the Israelites did? आप जानते हैं इस्राएल ने क्या किया? They didn't drive away those people. उन्होंने उन लोगों को निकाला नहीं, They compromised. उन्होंने समझौता कर लिया. भाई भाई बहन भाई. बहन They started getting married to them. Say तुम लोग हमारे घर पे आओ, हम तुम लोग घर पे आएंगे. उनके साथ शादी का रिश्ता और जोड़ने लग गए. And then और फिर those very people, वही लोग, there were wars. Read the book of Judges. न्यायों की पुस्तक में पढ़िएगा. युद्ध Read छिड़ the गए. book. Read the book of Judges. You all don't read. न्यायों की पुस्तक में पढ़िएगा. An evil pattern started. और फिर शैतानी सिलसिला शुरू हो गया. Hello. Peace, war. Peace, war. Peace, war. It never stopped. और शांति, फिर लड़ाई, फिर शांति, और ये कभी रुकी ही नहीं. If this had not happened, अगर ये नहीं हुआ होता, if they would have obeyed this, अगर उन्होंने इसका पालन किया look होता, at somebody and say, deal with your spiritual enemies. किसी को देख करके अपने आत्मिक शत्रुओं से निपट लो. What is that thing in your life क्या वो चीज आपकी जिंदगी that is causing you to fail? जो आपको नाकाम बनाती है? Is it smoking? क्या वो धूम्रपान Is है? it alcohol? क्या वो शराब है? Come on, help me. चलो कोई मदद Is करे. it anger? क्या गुस्सा है? Is it unforgiveness? क्या वो आशा है? थोड़ी सी बात बोलेगे तो तेरा वड़ा फूक जाता है. क्या हो गया? कुछ नहीं. तो तेरा मुंह ऐसा कैसे? मेरा मॉडल ऐसा है. अगर आपका बाजू वाला हंस नहीं समझेगा फिर कौन है? क्या हो गया? कुछ नहीं. कल आ रहे क्या? नहीं. अगले संडे भूल जाओ. It's okay. खैर, Please, can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? आपके नहीं आने से और मेरे नहीं आने से, सुनिए, आपकी वजह से नहीं, मेरे नहीं आने से भी कलीसिया चलेगी. नहीं, खुदा है भाई. प्लीज लिसन टू मी. इस बात को समझ जाओ, आप भी समझ जाओ, मैं भी समझ गया हूं. तुम्हारे नहीं आने से, मेरे नहीं आने से प्रभु का काम बंद नहीं होगा. नो, इस बात को समझ जाओ. समझिए इस बात को. इस बात को समझ जाओ. I want you and I want me and every one of you to understand this. और चाहते हैं कि आप, मैं और हर कोई इस बात को समझ जाए. What we think now, हम क्या सोचते हैं ना, we are indispensable. और देखिए हम इससे क्या हो सकता है? हम ही से हो सकता है. No sir. God can raise an ordinary shepherd boy. परमेश्वर साधारण से गडरिये को खड़ा कर सकता है. So it is us. तो ये हम, मैं कल से नहीं जाएगा. मत आना भाई. यहां पर सिर्फ 1000 लोग बैठते हैं रे. मुंबई में क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे हैं. I'm telling you, sir, you have to deal with these spiritual enemies. आपको इन आत्मिक शत्रुओं से निपटने की जरूरत है. You never see what it is. You always think the other person is your enemy. आप हमेशा सोचते हैं सामने वाला व्यक्ति जो वो आपका दुश्मन है. You get so hurt so easily. बहुत ही आसानी से In आपको some ठेस लग जाता है. families, this is a norm. कुछ परिवारों में तो ये एक आम बात हो गई. You talk about Christian. आप मसीह लोगों के बारे में बात करें. Father,
पिता, We bless Israel. हम इस्राएल पर आशीष बोलते हैं। अच्छा, ऐसा थप्पड़ 5 मिनट 5 मिनट सिखा। इजराइल के लिए प्रार्थना करता है, तेरे भाई तो तेरे घर में जो बाजू में सोते हैं उनके लिए नहीं पढ़ता है तू? डील विद दैट थिंग सर, उन चीजों से निपट लो डील जनाब। विद दैट थिंग। उन चीजों से निपट लो। हम नहीं अंडरस्टैंडिंग चर्च। ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। सॉरी सर, ऑफरिंग अभी तक लिया नहीं है मैंने, शायद कम आ जाए, कोई बात नहीं, खुदा देगा। नहीं एमन मत बोलो, सुनो अभी। I want you to deal with those things. चाहते हैं उन चीजों से आप निपट लें। What is that thing in your life? क्या चीजें हैं आपकी Is it जिंदगी? laziness? क्या वो आलसीपन है? Is it laziness? Is it doing things anyhow, sloppiness? क्या कोई ढीला ढाला रवैया, कैसी भी तरह से चीजें करना? बनियान इधर तो पैजामा उधर, sloppiness. What are you? क्या Are है? you like a gossip auntie on the phone? Speak for hours. हाँ ना? Oh. Don't laugh. हंसी नहीं। Some gossip uncles are also there. Stop it. बंद करें। These things will pull you down. ये चीज आपको नीचे खींच लेंगी। Today ask the Lord, Lord, आज प्रभु से कहे, प्रभु go on a spiritual retreat. आप आत्मिक ध्यान में जाएं। आत्मिक ध्यान में जाए. Yes, thank you, Pastor. 1 hour you sit quietly. 1 घंटा आप खामोशी से Write बैठे। down. Lord, what are the things that are pulling me down? कि प्रभु क्या चीजें जो मुझे नीचे डालती हैं? Write it down. लिख लीजिए। And don't put it on Facebook. These are the things that are pulling me down. और फेसबुक पे उसको पोस्टने का, ये वो चीजें हैं जो मुझे नीचे डालती रहती हैं। What are yours? Please share. तुम्हारी क्या है बताइए? Like and share. There are some things you share, some things you don't share. कुछ ऐसी चीजें जो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें को आपको शेयर नहीं करना चाहिए। नहीं तो डाल देंगे सीधा. These are my things. What's yours? You deal with those things. आप उन चीजों से निपटे। And it will take you 1 week. It will take you 2 weeks. It will take you 3 weeks. And by 1 month, you will become a different person. आपको 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगेंगे, देखिए, लेकिन Sir, 1 महीने में आप अलग व्यक्ति बन जाएंगे। किसी का एनिमी जर्दा है, किसी किसी का का एनिमी शत्रु जर्दा जर्दा है. है। हालेलुया, मुंह में जर्दा है. सच बोल रहा हूं. किसी का बिग बॉस है, फिल्म है. पास्टर को मत बोल, मैं बिग बॉस देख रहा हूं. What is your thing? आपकी वो चीज क्या है? Is it alcohol? क्या शराब है? Is it? Deal with it. उन चीजों से निपट लीजिए। Look at somebody and say, deal with it. किसी को देखकर कहें, निपट लो। नहीं तो 2024 तो गया, आधा तो गया. हैप्पी न्यू ईयर 2 ही महीने हो गए बोला था. There's one more happy new year coming. How many years you'll go like that? कितने साल तक ऐसे ही चलता रहेगा? 5 practical steps to overcome the spiritual enemies. Write it down. If I don't see you writing, the first one, पहला है recognize the enemy. शत्रु को पहचान लेना। Make a list of all those things what you're going through. और जिन चीजों में से भी आप गुजर रहे हैं, उन सारी चीजों को लिख लीजिए। On that list, it should not be some people's names. Huh? और उस लिस्ट में देखो, सूची में लोगों का नाम नहीं होना चाहिए। First one, recognize the enemy. सबसे पहला जो है, शत्रु को पहचान लीजिए। And second, दूसरा, use the word of God. परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। What do you mean by that? इसका मतलब क्या है? When Jesus met Satan in the wilderness, जब यीशु की मुलाकात शैतान से हुई, देखिए रेगिस्तान में, Jesus didn't negotiate with the devil. और यीशु ने वहां पर देखिए लेन देन नहीं किया। He said, if you are the son of God, Satan said, और शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, turn this stone into bread. इस पत्थर को रोटी में बदल दे। Jesus did not say, यीशु ने ऐसा नहीं कहा। ठीक है, ठीक है, I turn it into bread. मैं इसे रोटी में बदलता हूँ, You eat half, I eat half. तुम आधा खा लेना, मैं आधा खा लूंगा। Don't trouble me afterwards. इसके बाद मुझे सताना नहीं है। Take the bread. Satan doesn't want your bread. और शैतान को आपकी रोटी नहीं चाहिए। You know what Jesus said? आप जानते हैं यीशु ने क्या किया? He said, Shaitan, यीशु ने कहा, ठीक शैतान, से सुन. Man shall not live by bread alone. और यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, कितने लोग सुन रहे हैं? But by every word that proceeds from the mouth of God. लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। चल, खाली वाली. Hello, are you there? साथ में है? Yes, Satan went. He used the word of God. उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया। Tell your neighbor, speak the word. अपने पड़ोसी को बोले, वचन को बोले। Come on, everyone says, speak the word. सभी लोग कहें, वचन को बोले। Pastor, how to speak the word? और पास में जी कैसे वचन को बोलना On the है? Noah app, there are confessions. Speak the word. Free है. और नोआ ऐप में आपको ऐसे वचन का अंगीकार मिलेगा, मुफ्त में है। What आप are you बोलिए। going through? That confessions are there. और जिस दौर में से भी आप जा रहे हैं, उसके लिए अंगीकार है वहां Pastor, पर। do you use? Yes. पास में जी क्या आप भी इस्तेमाल करते हैं? हाँ। How many of you know yesterday I was leading intercession? As soon as I came on the stage, I said, the Spirit of the Lord is upon me. How many of you heard that?
कितने को सुना था जब That पादरी is confessing. Luke chapter 4 verse 18, 19. और ये वचन का अंगीकार है लूका का 4 अध्याय 18वां 19वां वचन I speak the word. वचन को बोलते हैं How many of you following me right now? कितने समझ रहे हैं The इस word of God is not to debate. The word of God is not to send good morning messages. The word of God is to fight against the enemy in the name of Jesus. परमेश्वर का वचन जो है देखिए वाद विवाद के लिए नहीं है गुड मॉर्निंग का संदेश भेजने के लिए नहीं लेकिन शत्रु से लड़ाई लड़ने के लिए है Second, दूसरा use the word. वचन का इस्तेमाल करें Put your hand on your chest and say, सीधे I हाथ am the temple of the Holy Spirit. और कहे मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं Say it, say it, say it, बोलिए say बोलिए it, say बोलिए it. बोले कितने बार बोलना है? जब तक तेरी आत्मा भर नहीं जाती तब तक बोलते रहे. Therefore no sickness can stay in my body. Therefore no disease can stay in my body. Therefore nothing unholy, unclean thing can stay in my body in the name of Jesus. इससे कोई बीमारी मेरे शरीर में टिक नहीं सकती इससे कोई रोग मेरे शरीर में कोई टिक नहीं सकता इससे कोई भी अशुद्ध अपवित्र चीज मेरे शरीर में टिक नहीं सकता यीशु के नाम में Are you being blessed? क्या आप आशीषित हो रहे हैं Third point, तीसरा pray in the spirit. आत्मा में प्रार्थना करें Go with me quickly. Please give me that. 1 Corinthians 14:4, AMPC. पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 4वां वचन 1 to go. He who speaks in a tongue edifies and what is the meaning of improves? वो बेहतर बनाता है खुद को उन्नति उन्नति करता है। बेहतर. How many of you want to improve yourself? कितने लोग अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं Speak in tongues. अन्य भाषा बोलें Shakatala brosekere mahatala bakaraba setelebre. As you regularly speak in tongues. और जैसे आप नियमित तौर पे अन्य भाषा बोलते हैं As you regularly speak in tongues. जैसे आप नियमित तौर पे अन्य भाषा What बोलते हैं, happens? क्या होता है The hold of that anger breaks. और वो क्रोध का पकड़ आप पे से टूट Come जाता on, है। help me right now. मेरे को तो मदद करें। That's what A. Allen did. और यही तो A. That's Allen what जी ने Dave Robertson did. और यही तो Dave Robertson Come जी on, ने किया। somebody. That's what Pastor Benny Hinn did. यही तो पास में मेरी जी ने भी की है How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I'm teaching you a secret. आपको एक रहस्य सिखा You रहे know, हैं किसी चोट बोल जल्दी पहुंचती है. ऐसे आवाज आते हैं. You have to speak in tongues. आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत है कोई भी मुझे ऐसा मत देखो. लगता है मेरे को बोल रहा है. हाँ, तेरे को बोल रहा हूं. अभी डिपेंड्स तू किधर बैठा है. Everyone say improves himself. सभी लोग कहें अपने आप को उन्नति करता So है you have to बेहतर speak बनाता in है। tongues. तो आपको अन्य भाषा बोलना है Homework. Homework. Today, आज 2 minutes का timer, you will speak in tongues. 2 मिनट का टाइमर लगा के आप अन्य भाषा बोलिएगा Band, 3 minutes timer, you'll speak in tongues. And you'll post it to on the group. No, this has to be discipline. It will improve. I didn't say it, God said it. He who speaks in a tongue edifies himself and improves himself. I want to improve myself. How can I improve myself? I speak in tongues. मुझे अपने आप को उन्नति करना है मुझे अपने आप को बेहतर बनाना कैसे मैं कर सकता हूं मुझे अन्य भाषा बोल के ये कर सकता है How many of you know that as soon as I'm coming on tongues, ask my wife, as I'm in the car, ask my daughter, as I'm at home, I'm speaking in tongues. और जब आदमी मंच पर आ रहे होते हैं या फिर कार में होते हैं या घर में होते हैं हर बार लगातार अन्य भाषा बोलते रहते You हैं can ask Pastor Ravi. आप मुझसे पूछ सकते हैं Am I right, Pastor? No, really. You need to speak in tongues. आपको अन्य भाषा बोलने की जरूरत है Then prophecy will flow. फिर भविष्यवाणी बहेगी Then anointing will flow. फिर अभिषेक बहेगा Come on, come on. It's not just to use in the church. और सिर्फ कलीसिया में इस्तेमाल करने वाली बात नहीं है हाँ, good. तेरे को आता है tongue. हाँ, तू बहुत अच्छा आदमी है. No, sir. It's a tool. ये एक साधन है It's a tool. एक औजार When है you're taking a walk. देखिए आप चल रहे हो Shakatala brasoto. Physical exercise, spiritual exercise. आप कहीं टहल रहे हैं तो देखिए शारीरिक तौर पे भी आप वो Somebody raise your hand and shout, I'm learning. आप Hallelujah. आत्मिक कसरत भी कर रहे हैं Is this blessing you? क्या ये आपको आशीष पहुंचा रही है? Fourth one. चौथा Romans 8:14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. रोमी 8:14 में जितने परमेश्वर के आत्मा के चला चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं You should allow the Holy Spirit to guide your thoughts आप पवित्र आत्मा को अनुमति देना चाहिए कि आपके विचारों में अगुवाई करें all throughout the day. पूरे दिन भर में Try to focus on the Lord. और प्रभु पर अपना ध्यान केंद्रित करें Moment things go, you focus on the और Lord. जिस पर आपका ध्यान भटकने लगता है प्रभु पे ध्यान केंद्रित करें Fifth one, I'm going fast. पांचवा Fellowship with other believers. दूसरे जो मसीह लोग हैं विश्वासी उनके साथ संगति करें Say it, everyone, fellowship with other believers. सब लोग कहें दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करें It is like 2 stones being scraped against one another. और ऐसा जैसा कि 2 पत्थर जो एक दूसरे से रगड़ रहे हैं जब तक आदमी अकेला रहता कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता उसको. रहता है क्या कुछ प्रॉब्लम? कभी भी उठता है, कभी भी सोता है, कभी भी खाता है. कुछ नहीं मिला तो नूडल खाता है. लेकिन फिर बीवी आती है. कम ऑन. तब पहला साल बहुत हनीमून. It's very nice. But the problem starts in the last second year. फिर जो समस्या जो है
दूसरे साल के आखिर में शुरू होता है। तू जा तेरे बाप के घर जा, तू जा तेरे माँ के घर। चालू, फिर पास्टर आता है घर में, प्रेयर करो पास्टर, प्रेयर करो। बोले कौन सा चाल चले? दूसरा चाल। क्योंकि तेरा कौन सा? तीसरा। ये लफड़ा है। कम ऑन, कम ऑन। फिर बच्चा आता है, फिर और प्रॉब्लम बढ़ जाता है। मास्टर वो बच्चे को लेके गई है, तू भी जा। Why? क्यों? Because you never know how to deal with people. क्योंकि आप कभी नहीं जाने कि कैसे लोगों से निपटा You जाता है, never know how to deal with people. कैसे लोगों से बर्ताव करना होता Come on, praise the Lord. I said praise the Lord. Don't get angry on me. I'm trying to finish off the problems with one short message of mine. है। गुस्सा होने की कोशिश मत कर। देखिए अपने एक ही संदेश के द्वारा जो है तुमको क्या लगता है मैं हंसा रहा हूं क्या तुमको? सर मैं हंसा नहीं रहा हूं, मैं मेरा काउंसलिंग टाइम कम कर रहा हूं। माँ बाप बच्चे को बहुत बढ़ाती है, फिर एक बहू आती है, चालू लफड़ा। माँ होती है इनसिक्योर। Why? Because you never know how to deal with people. You never know how to connect with people. How many of you listening, church? कि तो सुन रहे कलीसिया, These are the things. ये वो चीजें हैं। Church, you need to fellowship. कलीसिया देखो आपको संगति करने की जरूरत है। David not had one stone in his pocket. और दाऊद के जेब में या थैले में सिर्फ एक ही पत्थर नहीं था, He had 5 stones. उसके बाद 5 पत्थर थे। How many of you played goti? कितने लोगों ने गोटी खेला है कभी? तुम लोग तो सब PS4 वाले लोग हैं ना, सब बड़े बड़े गेम वाले लोग। हम लोग ने गोटी खेला है भाई। ऐसा गोटी हम लोग के पॉकेट में रखते थे और ऐसा गोटी लेके भागते थे, क्योंकि माँ पीछे पड़ी है इसलिए। हाँ, मेरी माँ आती थी केन लेकर, हम लोग गली में भागते थे सब, और वो गोटी आवाज करती है टैंग 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 टैंग। That time I realized उस समय पता चला that when David ran with the stones towards Goliath, those 5 stones were rubbing each other. Come here. तो जब Stones, come here. जब दाऊद जब दौड़ रहा था गोलियत की तरफ से, देखिए Come stones. Come on. Yes or no? Yes, yes, yes. Yes, 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 yes. बाजू वाले को बहुत दर्द होता है. When somebody wrongs you, rubs you the wrong way, जब कोई बहुत आपको दर्द गलत होता है. तरीके से आपको रगड़ देता है, But that is how it is. लेकिन ऐसा ही तो है ही That है। is how it is. ऐसा ही तो है ही है। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त? Yes. जी हाँ। That is when it is girlfriend boyfriend stage, everything is like, dreamy eyes, hearts and all that thing, clouds in the sky. It's all nice. But when you are saying I'm committed, that's when the problem starts. लेकिन जब आप कहते हैं चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ रिश्ते में कायम होने के लिए, देखिए वहीं पर समस्या होती You है। can stay together, साथ रह सकते हैं, live in. लिव इन रिलेशन। When you want, you go, you go. You go my way, I go highway. My friend, no. नहीं, सुने। This is what the world says. No यही तो दुनिया कहती commitment, है। no. No commitment. It can be for 2 months. It can be for 2 years. 2 महीनों के लिए हो सकता है, 2 साल के लिए हो सकता है। Because क्योंकि- in church you never dealt with people. कलीसिया में आपने कभी लोगों से You सही never बर्ताव से नहीं connected with people. You get angry. आपको You गुस्सा- get flustered. आप एकदम बौखला जाते थे, You make your own rules. आप अपने ही नियम कायदे कानून बनाने लगते थे। Sir, सुनिए, you have not learned to dealt with people. लोगों You से deal सही with people. बर्ताव या निपटना आपने सीखा नहीं, You get so easily intimidated. और बड़े आसानी से घबरा कर आप पीछे हटने लगे। God has not given you a spirit of fear. परमेश्वर आपको डर की आत्मा नहीं दी है। God has given you a spirit of love, of power, and of a sound mind. परमेश्वर ने आपको प्रेम, सामर्थ और अच्छे मन की आत्मा दी है। Some of you in your families, you're not talking to people. आप में से कुछ लोग अपने परिवार में लोगों से बातचीत नहीं You करते। leave chits under the mat. आप चटाई के नीचे देखिए, मैट के नीचे चीट डाल के You talk with WhatsApp. व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं। No, sir. नहीं जनाब। Today you will talk face to आज face. आमने सामने बात करेंगे आप। Today I plead the blood of Jesus on you. आज आप सभी पर यीशु के लहू को लगाते हैं। I'm telling all of you today. कहना चाहते हैं आप सभी से आज Take this message seriously. इस संदेश को गंभीरता से लें। When people used to hurt me earlier, I used to just keep them afar earlier. और जब पासवान जी को पहले समय में जब लोग इनको ठेस पहुंचाते तो लोगों को दूर रखते थे, You know what? I said, Lord, I want to grow in the anointing. और इन्होंने कहा प्रभु मैं अभिषेक में बढ़ना चाहता हूँ। The Lord said, प्रभु ने कहा go close to them. उनके नजदीक जाओ। Yeah. You cannot love people from far away. आप दूर से लोगों से प्रेम नहीं कर सकते, Learn to work in a team. और टीम के जैसा काम करने को सीखें। सब सीनियर पास्टर के हेलो गुड मॉर्निंग सब लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं, उसका औहदा कुछ नहीं, उसके साथ काम कर सकते हो तुम? फेलोशिप विद बिलीवर्स, योर वर्स्ट विल कम आउट. और विश्वासियों के साथ संगति करें, आपकी बदतर स्थिति जो अंदर से बाहर आएगी। टुडे आई चैलेंज यू, और आज आपको चुनौती देते हैं, लर्न टू डील विद इट. निपटने को सीखें।
May God teach you. परमेश्वर ही आपको सिखाए. May you rise up to be a great man of God, woman of God. परमेश्वर की महान जन, मैं एक महान चीज- महिला बनने का स्तर में मैं आप बैंड पहुंचे. से भी कहना चाहता हूं, सुनिए इस वक्त. कोई भी आदमी इस दुनिया में रहता है ना, उसको बहुत सारी चीजों से गुजरना पड़ता है. लेकिन तुम्हारा चुनाव है, क्या तुम वहां पर रहना पसंद करोगे या उस औहदे, उस मुकाम पर पहुंचना पसंद करोगे जो प्रभु ने तुम्हारे लिए रखा है. गॉड ब्लेस यू. शलोम.